یہ عشق تم نہ کرنا مکمل ناول از ہما قریشی۔ رات کی سیاہ تاریکی ڈھل کر روشن صبح میں تبدیل ہو گئی تھی، جبکہ وہ لٹی پٹی سی حالت میں بیٹھ کی پائیتی کے قریب فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی لڑکی گٹی گٹی ہچکیوں اور سسکیوں سے رو رہی تھی۔ دل میں درد بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں بیڈ پر موجود اس شخص نے ایک نکاح شدہ لڑکی کی عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ یا اللہ مجھے موت دے دے، اپنا چہرہ رگڑتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور تیش میں ہوٹل کے کمرے میں کوئی چیز تلاش کرنے لگی تھی تاکہ پہلے اس شخص کا قتل کر کے اپنا بیکار وجود بھی ختم کر سکے۔ میری زندگی تباہ کرنے والی، اللہ تمہیں بھی یوں ہی دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ دل سے اپنی سگی ماں کے لیے بددعائیں نکالتی وہ ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ کے ساتھ رکھی چھری اٹھا کر اس شخص کو مارنے کے لیے قریب آئی تھی جس نے نشے کی حالت میں اس کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ نے چاہا تو تم اپنی حلال اور محرم کے لیے ترس جاؤ گے اور قدرت تم پر رحم نہیں کرے گی۔ وہ نیم ریانہ حالت میں اوندے منہ سو رہا تھا جبھی اس نے بامشکل چاقو اٹھایا تھا۔ نہ جانے ایسا کون سا نشہ تھا جو سر پر سوار تھا کہ ایک لڑکی کو برباد کر دینے کے باوجود وہ بے خبر نیند سو رہا تھا۔ تم اس سے قبل کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی اس کی نگاہ اس شخص کے چہرے پر گئی تھی جس نے رات کے اندھیرے میں اسے تباہ کر کے رکھ دیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ ٹھہر گئی تھی۔ مقابل کا پرسکون چہرہ دیکھ کر اس کے ہاتھ لرز گئے تھے۔ چاقو بے جان ہوتے ہاتھوں سے نکل کر بیڈ پر ہی گر گیا تھا اور وہ خوف زدہ دھڑکتے دل سے دو قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ پاس پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود کو کور کرتے ہوئے اس نے بامشکل اپنی لرزاہٹ پر قابو پایا، ہاتھوں میں کپ کپی ہونے لگی۔ ڈگمگاتے قدموں سے صوفے پر پڑی اپنی سیاہ چادر اٹھا کر اپنے تن پر ڈالتی، اپنا بکھرا حلیہ سمیٹتی اس بگڑے امیر زادے پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالتی ہوٹل کے کمرے سے نکل آئی تھی، مگر دل میں دو لوگوں کو تباہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ شہر اقتدار میں واقع نائٹ کلب میں نوجوان نسل نشے میں دھت آج کی حسین رات انجوائے کرنے میں مصروف تھی۔ ایسے میں ایک جگہ الگ تھلگ سے صوفے پر بیٹھا ایک شخص ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس تھامے ہر چیز سے بے نیاز موبائل میں گھومتا۔ یوسف، وہ ایک نسوانی آواز پر چونک گیا تھا، رخ پھیر کر دوسری جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ لیٹس ڈانس، وہ نیم برہنہ چست لباس میں ملبوس لڑکی نشے میں جھومتی اسے ڈانس کرنے کی آفر کر رہی تھی۔ نو تھینکس، اس نے کہتے ہی کھڑے ہو کر لیدر کی جیکٹ کو ذرا جھٹکا، پھر ارد گرد اپنے دوست کی تلاش میں نگاہ دوڑائی تھی جو ڈانس فلور پر کچھ حسیناؤں کی کمر میں ہاتھ ڈال کے ناچتا دنیا جہان سے غافل تھا۔ ایک تو اس کے شوق، وہ ناگواری سے بڑبڑاتا ہوا اس وحشت زدہ ماحول سے نکل آیا تھا۔ وہ پارکنگ میں ہی کھڑا تھا جبھی اسے اپنے عقاب سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی تھی۔ پلیز چھوڑو مجھے، وہ کوئی نسوانی آواز تھی۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا۔ یوسف نے بغور دیکھا، وہ دو لڑکے تھے جو نشے میں دھت لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسے گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ ہائے، واٹس گوئنگ آن ہیئر؟ وہ دو قدم کا فاصلہ سمیٹتا نزدیک آ پہنچا۔ نتھنگ، شی از مائی گرل فرینڈ۔ یوسف نے دیکھا وہ کوئی کم عمر لڑکی تھی جو اس وقت نشے میں ہونے کے باعث اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ چھوڑو اسے، وہ ذرا روبدار لہجے میں بولا۔ مقابل دو دھان پان سی عیاش قسم کے لڑکے تھے، وہ حلیے ہی سے کسی بڑے گھرانے کے لگ رہے تھے۔ کیوں؟ گرل فرینڈ ہے میری، نشے میں ہے اس لیے نخرے کر رہی ہے۔ دوسرا چڑ گیا تھا۔ اچھا، گرل فرینڈ ہے تمہاری؟ یوسف نے لب بھیج کر سوال کیا۔ ہاں، وہ یک زبان بولے تھے۔ تیری یا پھر تیری؟ وہ اب انگت شہادت اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ دونوں کی، وہ پھر بولے۔ او ریئلی؟ یوسف نے دیکھا وہ لڑکی ہاتھوں میں جھول رہی تھی، بس بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی گرل فرینڈ نہیں ہوں۔ ہی از لائر، وہ ضرورت سے زیادہ ہی پی چکی تھی۔ چھوڑو اس لڑکی کو۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکے نشے کا فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے جا کر یقیناً کچھ غلط ارادے رکھتے تھے۔ کیوں ہیرو، تیرا بھی دل آ گیا ہے کیا اس ناصر حسینہ پر؟ وہ شرارت سے بولے تو یوسف نے گردن کو ترچھا کر کے ماتھا کھجایا۔ ہاں، بہت بری طرح، اور اگلے 2 منٹ میں تم دونوں غائب نہ ہوئے تو یہ دل تمہارے ساتھ بھی کچھ کر گزرے گا، اس نے دھمکایا۔ یہ کہیں وہ تو نہیں ہے؟ دونوں معنی خیزی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔
हो सकता है, दूसरे ने इज़हार ख़याल किया। नहीं, ये मेरा हीरो है, मेरा हीरो नंबर 1। वो लड़की नशे में ज़ोर से गुनगुनाई थी। छोड़ो लड़की को। इस बार वो सख्ती से बोला और साथ ही एक झटके से इसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा था। आह! मेरे हीरो, तुम मुझे बचाने के लिए आए हो। वो मुसलसल झूम रही थी। शट अप! इसके मुँह से आती महक पर यूसुफ को इस लड़की से भी कराहियत सी आई थी। ओके, ओके। इसने बड़ी-बड़ी आँखें खोलकर लबों पर उँगली रखी थी। देखो ब्रो, ऐसा करते हैं, डील कर लेते हैं। हमारे फ्लैट पर चलो, पहले तुम एन्जॉय कर लो, फिर हम दोनों की बारी। वो दोनों इसकी कसरती जिसामत और रौबदार शख्सियत देखकर ज़रा सुलह-जो अंदाज़ में बोले थे। नहीं, पहले तुम, फिर ये। वो इस अंदाज़ में बोला कि दोनों की आँखें खुलीं। वो इस लड़की को कमर से पकड़कर गाड़ी की छत पर बिठाता इन दोनों की तरफ बढ़ा था। वो आज मैं ऊपर, आसमां नीचे। वो खुद को बुलंदी पर महसूस करके फिर गुनगुनाई। यूसुफ ने घूरा। पहले कौन आएगा? जैकेट उतार कर इसकी गोद में रखते यूसुफ ने शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ाई थी। भाई पागल हो गया है क्या? हम ऐसे वैसे लड़के नहीं हैं। वो दोनों सटपटा कर भाग खड़े हुए थे। उल्लू के पट्टे। यूसुफ ने सर झटका, साथ ही इस लड़की को उतारने के लिए हाथ बढ़ाए, जो किसी नाजुक बच्चे की तरह इसी गोद में आन समाई थी। इडियट! पीछे हटो। इससे खुद से लिपटता महसूस कर वो बुरी तरह चिढ़ गया था। क्यों? तुम मेरे हीरो हो, मुझसे शादी नहीं करोगे? यूसुफ ने आईब्रो उठाए। बेहया! वो बड़बड़ाता हुआ इसे पीछे गाड़ी में लिटाता, गाड़ी सन से भगा ले गया था। ये मंज़र है जन्नत मंज़िल का, जिसके मास्टर बेडरूम में मौजूद वो औरत ब्राउन कलर के नाइट गाउन में मलबूस वन सीटर सोफ़े पर बरजमान अपने शौहर के पहलू में बैठी, हर थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ बोल रही थी, जबकि वो सादा ट्राउज़र शर्ट में मलबूस इसकी बातों से बेनियाज़ सिगार फूँकने में मसरूफ़ थे। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये लड़की जैसे-जैसे बड़ी होती जा रही है, हमारे लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, वो नागवारी से बोली। तो क्या करूँ? वक़्त से पहले घर से निकाल दूँ? वो कुर्राए। मैं कहती हूँ शादी करें इसकी, तमाम जायदाद अपने नाम लिखवाएँ और इस घर से रुखसत करें। वो हुर्राई। सब्र रखो, हर काम जल्दी नहीं होता। वो एक गहरा कश लेकर बोले थे, क्योंकि वो कार्रवाई तो पहले ही टाल चुके थे। लेकिन मैं मज़ीद इस बला को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो नागवारी से फुनकारी थी। वो है कहाँ? घड़ी में निगाह दौड़ाई तो रात के 12 बज रहे थे। पता नहीं, पड़ी होगी कहीं नशे में धुत। इन्होंने सर झटका। तुमसे कहा था ना, इसे इन सब लतों में मत लगाओ। इनका दिमाग घूमा था। इसकी गैदरिंग का असर है। इन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। ओह रियली? इन्होंने बीवी को ऐसे देखा जैसे वो कुछ जानते ही नहीं। मैंने इसका रिश्ता देखा है। मेरा एक बहुत अच्छा बिज़नेस पार्टनर है। उम्र में मुझसे तकरीबन 7 साल छोटा है, मगर बहुत पैसे वाली असामी है। अगर हमारी रिश्तेदारी बन गई, तो समझो हम बैठे-बिठाए अरबपति बन सकते हैं। इस बार दोनों मियाँ-बीवी की आँखें चमकी थीं। अरे वाह! तो कब आ रहे हैं रिश्ता देखने? वो ज़्यादा ही जल्दबाज़ थी। रिश्ता? मैंने तो 2 दिन बाद का निकाह डन कर दिया है। लाइबा की तस्वीर देखते ही वो पागल हो गया था। 55 साल की उम्र में 20 साल की लड़की मिलना कोई आसान बात है। दोनों मियाँ-बीवी का बेहंगम सा कहका गूंजा था। वैसे सच बताओ, तुम्हारी सगी बेटी ही है ना? इस औरत ने लब दबाए। वो सिर्फ़ इस नाहनचार औरत की बेटी है, जिसे ज़बरदस्ती मेरे पल्लू से बाँध दिया गया था। इनका दिमाग घूमा था। अच्छा दफ़ा करो, तुम्हारी बेटी मान जाएगी? वो ख़दशात का शिकार थी। इसने आज तक मेरी किसी बात से इनकार किया है क्या? उन्होंने आईब्रो उठाए। उफ़! मुझे तो सोच-सोच कर ही एक्साइटमेंट हो रही है। सुबह का सूरज हर सू अपनी रोशन किरणें फैला चुका था। वो भारी होते सर के साथ उठी तो इसे महसूस हुआ कि वो इस वक्त बेड पर मौजूद थी। दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि वो तो अपनी दोस्त के साथ डिस्को गई थी। उफ़! ये मुझे क्या हो रहा है? इसका दिमाग अभी तक घूम रहा था। ये लो, ये पियो, अच्छा महसूस करोगी। लाइबा ने चौंक कर सर उठाया तो इसकी निगाह मुकाबिल खड़े खूबसूरत नौजवान पर जा टिकी थी। वो नौजवान जो ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस जाज़िब नज़र शख्सियत का मालिक था, इसके घने बाल माथे पर बिखरे हुए थे, जो इसकी दिलकश शख्सियत में
मज़ीद इज़ाफ़ा कर रहे थे। कसरती जिसामत, चुस्त पोलो शर्ट में इसका जिस्म मज़ीद नुमायाँ था। इसकी सहरी आँखों में एक अजीब-सी चमक थी, जिसे देखकर ही लाइबा को अजीब-सी वहशत हुई थी। "भूल लिया मुझे? अब ये पी लो।" यूसुफ ने जताकर कहा तो वो गड़बड़ाकर होश में आई। "कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ?" इसने भारी होते सर के साथ दिमाग पर ज़ोर डाला था। "तुम इस वक़्त मेरी कैद में हो और अब हमेशा इस कैद में ही रहोगी।" बेड पर एक घुटना टिकाता वो ज़रा नज़दीक झुका। लाइबा सहम कर पीछे हुई थी। "मैं यहाँ कैसे? कौन हो तुम? प्लीज़ मुझे जाने दो।" इसने इसने होश में आते निगाह दौड़ाई तो वो कोई अनजानी सी जगह थी। सामने खड़ा अजनबी शख्स कोई ख्वाब नहीं, हकीकत था। हाँ, ऐसे कैसे? वो मज़ीद इस पर झुकता अपने लब इसके रुख़सार पर रख गया था। नहीं प्लीज़, मैं ऐसी-वैसी लड़की नहीं हूँ। लाइबा ने अपना बचाव करने की खातिर खुद पर निगाह दौड़ाई तो महसूस हुआ कि वो इस वक़्त जीन्स की पैंट के साथ कमर तक आता स्टाइलिश सा टॉप पहने गैर मुनासिब हालत में इसके सामने मौजूद थी। तुम कैसी लड़की हो इस बात का अंदाज़ा तो मुझे रात में ही हो गया था। खैर जल्दी से नाश्ता कर लो, जब तक मैं हमारे निकाह का इंतज़ाम कर लेता हूँ स्वीटहार्ट। लाइबा को 400 वोट का ज़बरदस्त झटका लगा था। ये क्या बकवास है? कौन हो तुम? और मेरे साथ क्या करना चाहते हो? क्यों लाए हो यहाँ पर? वो यकदम जज़्बाती होती बेड से उठकर भागने के लिए दूसरी जानिब से उतरी थी। कोशिश बेकार है। इस घर के बाहर मेरे हज़ारों गार्ड्स खड़े हैं। तुम चाह कर भी यहाँ से नहीं भाग सकती। वो घूम कर बेड के पाँव पसार कर लेटा मायने ख़ेज़ लहज़े में बोला था। क्या चाहते हो मुझसे? वो खौफ़ज़दा हुई। यहाँ तुम्हारी मौजूदगी चाहता हूँ। वो बेबाकी से अपने पहलू में हाथ धर कर बोला। लाइबा का चेहरा सुर्ख़ पड़ गया। शट अप! मैं तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूँगी। वो चिंगाड़ी। ओह रियली? शुक्र मानो कि तुम जैसी बेहया से निकाह कर रहा हूँ, वरना तुम्हें इस जगह लाना मेरे लिए मुश्किल बात नहीं है। वो एक ही जिस्म में इसके नज़दीक पहुँचता दुरुस्तगी से गुर्राया, तो लाइबा की आँखों में आँसू आ गए थे। तुम जो कोई भी हो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। वो आँसुओं से रोती इसके आगे हाथ जोड़ चुकी थी। ज़रूर जाने दूँगा, मगर मेरा मकसद पूरा होने के बाद। चुपचाप से निकाह के लिए हामी भर देना, वरना याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इंगत शहादत उठाकर तंबी लहजे में बोला तो इसकी आंखों से आंसू बह पड़े थे। या अल्लाह! ये कैसी आजमाइश है? वो सिसकियों और हिचकियों से रो पड़ी थी। असफन, उठो, रात से सुबह हो गई है और तुम्हारी बेटी का कुछ पता नहीं है। हम तो पुलिस में भी कंप्लेन नहीं कर सकते। वो नागवार लहजे में गोया होती इन्हें झंझोर कर उठा रही थी। तो मैं क्या करूँ? क्या चिराग लेकर इसे तलाशने निकल जाऊँ? वो नागवारी से बोलते हुए दूसरी तरफ करवट ले चुके थे। अभी थोड़ी देर पहले ही फजर हुई थी और लाइबा अब तक घर नहीं आई थी। तौबा है, कुछ ख़याल करो। कहीं तुम्हारी बेटी को हमारे प्लान की खबर तो नहीं हो गई और वो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई हो? इन्होंने खदशे का इज़हार किया। अगर ऐसा कुछ है तो ये सब तुम्हारा कसूर है, बेवकूफ़ औरत। वो नागवारी से हो रहा है। उफ़! उठो और उठकर इसे ढूँढो। अगर 2 दिन बाद निकाह में वो घर ना हुई, तो क्या जवाब दोगे तुम उस बुड्ढे को? वो चिल्लाई, तो वो तेज़ी से उठकर बाहर की जानिब भागे। वो कमरे में ढंग के शलवार कमीज़ में मलबूस बैठी थी। निकाह ख़वाह की मुंतज़िर थी। यूसुफ धमका कर गया था कि अगर इसने निकाह ना किया, तो वो जो करने का इरादा रखता है, वो निकाह के बगैर भी किया जा सकता है। उफ़! ये मुझे क्या हो रहा है? वो अपना घूमता सर थाम गई। इतने में मुलाज़िमा की हमराही में इसकी मर्ज़ी पूछने में मौलाना साहब साथ ही चले आए थे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इससे रज़ामंदी ली जा रही थी जबकि इसकी आँखों से आँसू जारी हो गए थे। बेटा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसकी खामोशी पर वो दूसरी बार पूछा गया। कबूल है। धड़कते दिल के साथ वो निकाह के लिए रज़ामंदी दे चुकी थी, जबकि आँखों से आँसुओं का सैलाब जारी था। दिन निकल आया था, पता नहीं बाबा ने इसे ढूँढा भी होगा या नहीं। वो अभी यही सब सोच रही थी कि जभी वो बेधड़क कमरे में दाखिल हुआ था। हेलो स्वीटहार्ट, इसने सवालिया निगाहों से देखा। निकाह मुबारक हो। इसने निकाह के कागज़ात दिखाते हुए दाँत बाहर निकाले थे। जाने दो मुझे यहाँ से। वो तेज़ी से उठ खड़ी हुई थी। श्योर व्हाई नॉट? वैसे भी तुम जैसी लड़की को मैं मज़ीद अपने घर में अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। इसके लहजे में कराहियत वाज़ेह थी। लाइबा ने बेयकीन निगाहों से इसकी जानिब देखा था।
वो एक खूबसूरत शख्सियत का मालिक, हैंडसम नौजवान था। दराज़ कद, कसरती जिसामत, बड़ी-बड़ी गहरी-सी आँखें, कुशादा पेशानी, उठी हुई नाक और माथे पर बिखरे बाल, जिन्हें वो बार-बार हाथ की मदद से दुरुस्त करता, भला का हसीन लगता था। मगर लाइबा को इसके चेहरे से भी घिन महसूस हो रही थी। इसके तो सिर्फ़ लहज़े में कराहियत थी, जबकि लाइबा को तो इसके वजूद तक से कराहियत महसूस हो रही थी। "क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा?" वो गुर्राई। "बताया तो था, भूल गईं क्या?" वो करीब आया, वो सहम कर 2 कदम पीछे हुई। डर लग रहा है?" वो कदम उठा रहा था, वो पीछे होती दीवार से जा लगी थी। "क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा?" इस बार वो आँसुओं से रो पड़ी थी। "नो बेबी नो।" इसने नफ़ी में सर हिलाया। "रोते नहीं हैं और रोने का ये सही वक़्त नहीं है।" रायबा के सर पर मौजूद दुपट्टा ढलक कर शानों पर आ गिरा था। जबकि वो पीछे कमर पर लगे कागज़ात निकालता, पैंट की पॉकेट से लाइटर निकालकर इन कागज़ात को इसके सामने लहराकर शोला भड़का चुका था। "जानती हो ये क्या है?" लाइटर की आग कागज़ को पकड़ चुकी थी। वो बेयकीन निगाहों से इसकी जानिब देख रही थी। "निकाहनामा, जिससे साबित होता था कि तुम मेरी बीवी हो। मगर मसला ये है कि ये बात सिर्फ़ तुम और मैं जानते हैं। किसी और को साबित करने के लिए मैं कोई सबूत ही नहीं छोड़ा।" 1 मिनट से भी कम अरसे में वो कागज़ का टुकड़ा जलकर राख हो गया था। बल्कि नहीं, मुकाबिल खड़े यूसुफ जहांगीर ने लाइबा असफंदियार की ज़ात की धज्जियाँ बिखेर दी थी। जिस तरह कागज़ की राख हवा में उड़कर रेज़ा-रेज़ा हुई थी, बिल्कुल इसी तरह इसका वजूद हवा में तहलील हो गया था। "अब तुम अपने घर जा सकती हो।" वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए तंज़िया लहजे में गोया हुआ था। "वैसे स्वीटहार्ट, काफ़ी खूबसूरत हो तुम।" इसके चेहरे पर फूँक मारता, वो गाल पर अपने लब रख गया था। लाइबा के वजूद में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। आँखों में बेयकीनी सी थी, इसके चेहरे पर झुका खड़ा वो एक लम्हे के लिए ठहर गया था। इसका दो आतिशा हुस्न वाक़ई किसी का भी ईमान डगमगा सकता था। किताबी चेहरा, रोशन पेशानी, तीखे नैन नक्श, मलाई सी जिल्द, बड़ी-बड़ी सियाह आँखें जिन पर सियाह पलकों का पहरा था। कद-काठ में वो मुनासिब सी थी, इसके सीने तक आ रही थी। नैनों से टपकते कतरे एक लम्हे को इसका दिल मोम कर गए थे। "पीछे हटो बेहुदा इंसान।" इससे कबल के वो बहकता, लाइबा इसे पीछे को धक्का दे चुकी थी। वो सटपटाया, "उठो और चलो मेरे साथ।" वो घसीट कर अपने साथ लाता कारपोच में लाया था। "कहाँ ले जा रहे हो मुझे?" इसे गाड़ी में धक्का देता, वो खुद ड्राइविंग सीट सँभाल चुका था। "तुम्हारे बगैरत बाप के पास छोड़ने।" वो तेज़ी से लहजे में गुर्राया। लाइबा ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। चाहते क्या हो मुझसे? कौन हो तुम?" इसको रश ड्राइविंग करता देख वो सहमी सी गुर्राई। "जो मैं चाहता था मेरा मकसद पूरा हो गया। तुम्हारे बगैरत बाप से इंतकाम चाहता था, मेरा इंतकाम पूरा हुआ। मेरे बाप से बदला लेना था ना, तो इनसे लेते ना। मुझे किस बात की सज़ा दी?" वो अज़ियत से चिल्लाई। "इस बात की क्योंकि तुम इसकी बेटी हो।" वो बोला तो इसने हैरत से इसे देखा। "ये बदला है तुम्हारा? हाँ, अब सारी ज़िंदगी सबको सफाई देती रहोगी कि तुम मेरे निकाह में हो, मगर तुम कभी साबित नहीं कर पाओगी।" लाइबा की आँखों में क्या कुछ न था, वो इंतकाम की आग में अंधा हो चुका था। "कैसे बुज़दिल मर्द हो तुम, मेरे बाप का बदला मुझसे ले रहे हो। अगर मेरे बाप ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था, तो इनसे बदला लेते। बुज़दिल।" यूसुफ का चेहरा लहू रंग हुआ था। "शट अप!" वो चीखा। "चिल्लाओ मत और तलाक दो मुझे।" अपने घर की गली देखकर वो चीखी थी। "तलाक तो मैं तुम्हें ज़रूर दूँगा, मगर वक़्त आने पर। दफ़ा हो जाओ यहाँ से।" वो इसे इसके घर से 2 गलियाँ पहले ही गाड़ी से धकेल कर निकाल चुका था। "तुम हो कौन? अपना नाम?" वो विंडो स्क्रीन तक आई, मगर जब तक वो गाड़ी भगा ले गया था और वो रेत उड़ाती गाड़ी देखती रह गई थी। दोपहर का 1 बज रहा था, जब वो लुटी-पुटी सी हालत में घर की दहलीज पर आई थी। चौकीदार ने इसे देखते ही साइड का छोटा गेट खोल दिया था और वो पत्थर की मूरत बनी मरे कदमों से घर में दाखिल हुई थी। सामने लाउंज में बैठे बाप से नज़र टकराई। "रात से कहाँ थी तुम?" वो एक ही जस्ट में नज़दीक आए थे। "बाबा वो हकलाई।" "क्या बाबा?" वो गुर्राए। मैं वो लफ्ज़ लबों में अधूरे ही रह गए थे और वो लहरा कर इनके बाजुओं में झूल गई थी। "सूफ़ी, देखो क्या हुआ इस बदबख्त को।" उन्होंने तेज़ आवाज़ में अपनी बीवी को पुकारा था। "ओह! ये कहाँ से आ गई?" वो हैरान थी, पता नहीं क्या करके आई है,
मुझे तो नशे में लग रही है। इन्होंने किसी अछूत चीज़ की तरह सोफ़े पर पटका। इसके कपड़े ये तो डिस्को के हिसाब से कपड़े पहन कर गई थी। होगी रात भर अपनी किसी दोस्त के साथ। ज़ोफ़ी ने बग़ौर इसके चेहरे का जायज़ा लिया। कमरे में पहुँचाओ इस बदबख्त को और ख़याल रहे कि किसी नौकर को इसके रात भर घर से बाहर रहने की ख़बर नहीं होनी चाहिए। सफ़ाकियत की इंतहा हुई थी। ओह! कौन-सा पहली बार बाहर रही है। वो मुस्कुराईं। हेलो, यूसुफ, कहाँ हो तुम? सारी रात से कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें। वो तेज़ लहजे में पुनकारी तो यूसुफ ने माथा खुजाया। यार, बस बिज़ी था। इसने लब चबाए। कहाँ बिज़ी थे? इसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिज़ी था स्वीटहार्ट। तुम बताओ, किस लिए याद कर रही थी? वो रिलैक्स अंदाज में बेड पर पाँव पिसार कर बैठ गया था। बस वैसे ही तुम्हारी याद आ रही थी। तुम लंदन कब आओगे? तुम तो वहाँ जाकर अपनी फैमिली को भूल ही गए हो। वो शिकवा लहजे में बोली। यार, यहाँ बिज़नेस सेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इरादा पाकिस्तान में सेटल होने का है। यहाँ बाबा का बिज़नेस है, सब कुछ है। वो आगाह कर रहा था। मगर तुम जानते हो ना कि मुझे पाकिस्तान में कुछ ख़ास पसंद नहीं है। मैं बचपन से यहाँ ग्रैनी के साथ रही हूँ। यार, मैं पाकिस्तान नहीं रह सकती। वो ज़िद हुई थी। वो हम शादी के बाद डिसाइड कर लेंगे। वो ऐसे बात कर रहा था गोया कुछ देर कबल इसने किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ही ना की हो। अच्छा, खैर तुम बताओ, पाकिस्तान आने का कोई इरादा है? क्योंकि मैं तो अभी साल भर यहीं रहूँगा। कुछ काम निपटाने हैं। वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स भी तो यहीं हैं। मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई है। वो आगाह कर रहा था। नहीं, फ़िलहाल मेरा तो कोई इरादा नहीं है। और मॉम डैड से मिलना इतना ज़रूरी नहीं है। ग्रैनी से मिल लिए बस काफ़ी है। वो बेनियाज़ी से बोली। अच्छा, चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अब वो दोनों बात करने लगे थे और वो और जिमल यूनिवर्सिटी के ज़माने के फ्रेंड्स थे। यूसुफ की फैमिली शुरू से बाहर सेटल थी और वो भी अपनी ग्रैनी के पास बाहर ही रहती थी। रात का न जाने कौन-सा पहर था जब इसकी आँख खुल गई थी। इर्द-गिर्द में निगाह गई तो एहसास हुआ वो इसका कमरा था। उफ़! ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक ही रात में काफ़ी कुछ बदला था। बाबा, एकदम सब याद आया था। मैं यहाँ, वो शख्स, वो कौन था? वो जैसे-जैसे सोच रही थी, सर दुखने लगा था। या मेरे अल्लाह! दिल किया चीख कर रोए। पता नहीं ये मेरे नसीब की कौन-सी आज़माइशें हैं जो बढ़ती ही रहती हैं। भूख के मारे बुरा हाल था। इसने कल शाम का खाना खाया हुआ था। सारा दिन वो कमरे में बेहोश पड़ी रही थी। मुझे बाबा के पास जाना चाहिए। इनसे पूछना चाहिए कि वो शख्स कौन था। मगर मुझे तो इसका नाम ही नहीं मालूम। वो याद कर कँपकँपाई। मैं बाबा को क्या मुँह दिखाऊँगी? वो सोचकर ही काँपने लगी थी। दरहकीकत तो वो एक खौफ़ज़दा रहने वाली, डरी-सहमी सी चिड़िया थी। नहीं, नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी और नेक्स्ट वीक के बजाय कल ही हॉस्टल वापस चली जाऊँगी। सोचकर ही दिल काँप गया था। इसकी सौतेली माँ तो पहले ही नापसंद करती थी, फिर अब वो ना जाने क्या करती। लेकिन वो शख्स, दिल हूँ ना हो खदशात में था। या अल्लाह मेरी मदद कर। जब कुछ समझ नहीं आया तो वह आँसुओं से रो पड़ी। बेसाख्ता रब को पुकारा और फिर मुश्किल वक़्त में तो इंसान को बस एक ही सहारा नज़र आता है। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता बाबा जान कि मैं ये निकाह हरगिज़ नहीं करूँगी। वो चीख कर बोलती बाबा के मुकाबिल आ खड़ी हुई थी। तुम्हें इस निकाह के लिए मानना ही होगा लाइबा। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे निकाह कितना अमीर शख्स से करवा रहा हूँ। इस सफ़ाक बाप की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। वो सोफ़े पे बैठी तेज़ निगाहों से बेटी को घूर रहे थे। लाइबा की आँखों में से आँसू लरस रहे थे, जबकि वो इनके हुक्म के सामने सर झुकाने पर तैयार नहीं थी। उसे नागवारी नज़रों से बेटी को देखा जो इनकी जान का अज़ाब बन गई थी। मैं एक ही बात कितनी बार बताऊँ आपको बाबा जान कि मैं किसी और के निकाह में हूँ, वो शिद्दत गिरे से चिल्लाई थी। बकवास बंद करो, तुम्हें लगता है तुम्हारी इन ड्रामेबाज़ियों पर यकीन करूँगा? वो तेज़ लहजे में दहाड़े।
वो एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गुलाबी गाल पर रसीद कर दिया। मुझ पर ज़ुल्म कर रहे हैं आप बाबा जान। वो सिसक उठी थी। इस नामालूम शख्स ने इसे किसी काबिल नहीं छोड़ा था। ज़ुल्म? ये ज़ुल्म नहीं, तुम्हारी बेहतरी है। तुम्हारी ज़िद और हरकतों ने पहले ही मुझे पूरी दुनिया के सामने बदनाम करके रखा है। ये निकाह तुम्हें करना होगा, वो गुर्राए। लाइबा ने जलती हुई आँखों से बाप को देखा, जिन्होंने हमेशा से इसके साथ सौतेलों वाला सलूक किया था। मुझे अपनी जागीर मत समझिए बाबा जान, मैं कोई सौदा नहीं जो बार-बार बेचा जाए। और कितनी बोलियाँ लगाएँगे आप मेरी? कितने की डील साइन की है आपने? वो चिल्लाई। दरवाज़े पर खड़ी इसकी सौतेली माँ ने जलती आँखों से ये मंज़र देखा था। वो अपनी बेटी की शादी से कब्ल ही इस मनहूस लड़की को यहाँ से दफ़ा करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इसके मंगेतर की निगाह इसकी खूबसूरत बहन पर पड़े और वो अपना इरादा तब्दील कर ले। ये निकाह हर हाल में होगा, ये बात अपने ज़हन में बिठा लो, वो गरजे। लाइबा के दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगीं। इसने अपने काँपते होठों पर को काबू में रखते हुए आखिरी बार इल्तिजा की, "अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं मर जाऊँगी बाबा।" वो सिसकियों से रो रही थी। दरवाज़े पर खड़ी इसकी सौतेली माँ ख़बासत से मुस्कुरा रही थी। "तो फिर मर जाओ, क्योंकि वैसे ही मनहूस वजूद है तुम्हारा। जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो, कोई खुशी देखना नसीब नहीं हुई।" वो दहाड़े तो इसने बामुश्किल अपनी सिसकियों पर काबू किया था और इस शख्स को बद्दुआओं से नवाज़ा था जो इसकी साख को ज़वालिया निशान बनाकर छोड़ गया था। बाहर मौलवी साहब आए बैठे हैं, निकाह शुरू हो रहा है। अपनी रज़ामंदी दे देना और याद कर लो, आज से ठीक 4 दिन बाद तुम्हारी रुख़्सती है। उन्होंने तंबीह की। लाइबा ने बेबसी से बाप को देखा, जो कमरे से निकल गए थे, जबकि वो दोनों भी इस पर इस्तेज़ाया निगाह डालती वहाँ से निकल गई थीं। घर के वसीअ से ड्राइंग रूम में वो अधेड़ उम्र बूढ़ा शख्स कर्फ्यू से डबल सीटर सोफ़े पर बर्जुमान था। इसे बस जल्द से जल्द निकाह का इंतज़ार था। असफंयार अंदर आ गया था, अभी तक बाहर नहीं आया था। जब भी इसकी निगाह घूंघट में साथ आती लड़की पर पड़ी तो माथे पर शिकने नमूदार हुई, मगर वो खामोश रहा। इस लड़की के चेहरे पर घूंघट क्यों डाल दिया? इसने सवाल किया। निकाह तो हो जाने दें शेख साहब, इन्होंने खिसियाकर कहा। तो वो सर झिटक गए। जल्द से जल्द निकाह शुरू करो, मुझे आज दुबई जाना है शाम की फ्लाइट से, वो उजलत में बोला था। जब भी ड्राइंग रूम में मौलवी साहब के अल्फाज समातों से टकराए थे। लाइबा जो ज़बरदस्ती यहाँ तक आई थी, इसकी बस हुई थी। एक झटके से घूंघट चेहरे से हटाया था। रोती हुई आँखें, कँपकँपाते लब, न रास्ता सरापा। वो एक लम्हे को फ्रीज़ हुआ था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? समातों में बाज़गश्त करते अल्फाज इसने बेबसी से आँखें मीच ली थीं। यही अल्फाज कुछ रोज़ कब्ल इसकी समातों में गूंजे थे और जब से ही इसकी आज़माइशों का आगाज़ हुआ था। बेटा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? लफ्ज़ दोबारा दोहराए गए थे। मैं ये निकाह नहीं कर सकती। मैं निकाह पर निकाह करने का गुनाह नहीं कर सकती मौलवी साहब। वो खुद पर ज़ब्त होती चिल्ला उठी थी और असफंयार साहब बुरी तरह से गड़बड़ाए थे। लाइबा, ये क्या बकवास कर रही हो? वो बुरी तरीके से दहाड़े थे, जबकि शेख साहब ने घूर कर देखा था। बकवास? मैं बकवास कर रही हूँ? इसने सिसकते लहजे में इस्तफ़सार किया। तौबा इस्तग़फ़ार, क्या माजरा है? अगर बच्ची का पहले से कहीं निकाह हुआ है, तो निकाह पर निकाह कराने का गुनाह करने से बेहतर है कि आप इज़्ज़त से बच्ची को इसके शौहर के साथ रुख़्सत कर दें, मौलवी साहब ने समझाने वाले लहजे में कहा था। झूठ बोल रही है मौलवी साहब, अगर इसका निकाह हो रखा है, तो पूछें इसका शौहर कहाँ है? इस लड़की का निकाहनामा कहाँ है? उन्होंने घूरा। मैं नहीं जानती बाबा, मगर प्लीज़ मुझे मजबूर मत करें। वो रोंआसू हो गई थी। आप अपनी बेटी के साथ मामलात तय कर लें। बच्ची की रज़ामंदी के बगैर ये निकाह नहीं हो सकता। मुझे इजाज़त दीजिए। वो वहाँ से निकल आए थे जबकि वो हिचकियों से रो रही थी। ये क्या ड्रामा है असफंयार? इस बार वो गुर्राए थे। जबकि इस लड़की का गैर मामूली हुस्न और कम उम्री देख इनकी नीयत पहले ही खराब हो चुकी थी। ये ड्रामा कर रही है। पढ़ गई होगी यूनिवर्सिटी में किसी बदबख्त के इश्क में। वो खुद ही बेटी की ज़ात के परखच उड़ा रहे थे। तो पहले अपनी आवारा बेटी को सँभाल लो ना, और हमारे दरमियान जितनी भी डील्स हुई थी वो सब कैंसल समझो। वो दुरुस्तगी से बोलते अपने साथ आए कुछ अजीज़ो-अकारिब को साथ लिए वहाँ से निकल आए थे। देखा, हमें बदनाम करके रख दिया आपकी बेहया बेटी ने। वो शख्स दूसरी बार नाराज़ होकर गया है। करोड़ों का नुकसान हो गया है मुझे। वो बीवी पर बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे, जभी उन्होंने भी नखवत से कहा, तो मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी बेटी है। मैं तो शुरू से कहती हूँ, है ही बेहया। वो नागवारी से फुनक आई थी। इस लड़की को मेरी नज़रों के सामने से दूर कर दो। वो तेज़ लहजे में फुनकारते कमरे से निकल गए थे।
चलो बीबी, बहुत आँसू बहा लिए, निकलो इस घर से। उन्होंने आगे बढ़कर इसे हाथ पकड़कर उठाया था। ये क्या बदतमीज़ी है? छोड़ो मेरा हाथ, लाइबा ने अपना दिफ़ा करना चाहा था। क्यों छोड़ दें बीबी? ताकि तुम हमारे सर पर अज़ाब की तरह मुसल्लत हो जाओ। वो नागवारी से गुर्राई थी। जभी मुलाज़िमा की आवाज़ पर वो चौंकी। बीबी, छोटी बीबी का फ़ोन है। सूफ़ी एक काट-दान निगाह डालकर कॉल रिसीव की थी। हेलो, मॉम, क्या इस मनहूस का निकाह हो गया? वो हमारे घर से दफ़ा हो गई? दूसरी जानिब से चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। लाइबा ने कब्र से आँखें मींच ली थीं। कहाँ बेटा, यही है मनूस, वो तनफ़्फ़ुर से गुर्राई। क्या मसला है इसके साथ? निकाह नहीं हुआ? इसके तल्ख़ अंदाज़ पर वो यूँ ही सारी रुदात सुनाने लगी थी, जभी वो गुस्से से बोली, आप इस लड़की को अभी यहाँ से चलता करें, इसका इंतज़ाम तो मैं कराती हूँ। वो गुस्से से बोलती राब्ता मुनक़ता कर गई। चलो बीबी, निकलो हमारे घर से, वो गुस्से से बोली। अल्लाह का खौफ़ करें, कुछ रहम करें मुझ पर। वो आँसुओं से लबरेज़ आवाज़ में बोली थी, मैडम, बाहर एक गाड़ी आई है। छोटी बीवी के हवाले से वो मोबाइल पर मौसूल होते पैगाम से समझ गई थी कि ये किसकी गाड़ी है। चलो निकलो। बाबा मुझे बचाएँ, बाबा आपको अल्लाह का वास्ता है, मैं बेटी हूँ आपकी। वो वहीं से चिल्ला रही थी मगर इस घर में किसी के भी कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी और उन्होंने घसीट कर ले जाते इसे गाड़ी में धक्का दिया था, जहाँ से इसकी बदकिस्मती का आगाज़ हुआ था। यूसुफ, वो मोबाइल हाथ में पकड़े मसरूफ़ सा डिस्को में मौजूद था। हुँ, ये इसका दोस्त वलीद था। चल यार उठ जा, यही दिन होते हैं एन्जॉयमेंट के। यूसुफ ने हाथ झटका। मैं तेरी वजह से यहाँ आ जाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि इस खराफात में भी पड़ूँगा। वो नागवार लहजे में बोला था। अबे भई, सारी नेक इंसान मुझे ही मिले हैं। खैर, आज मेरी नाइट का तो बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है। तू बता, तेरा भी करा दूँ? वो ज़ुमाइनी लहजे में पूछ रहा था। दफ़ा हो यार। वो गुस्से से बोला तो वो बेबाकी से मुस्कुराता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ा था और साथ ही इसे कुछ हिदायत दी थी। वो यूं ही मसरूफ सा बैठा इस लड़की के बारे में सोच रहा था जिसे इसने कल अपने निकाह में लिया था। ना जाने क्यों अजीब सी घबराहट हो रही थी। जभी वेटर की आवाज़ पर वो बुरी तरह से चौंका था। सर, ये आपके लिए। वो सॉफ्ट ड्रिंक इसकी जानिब बढ़ाए खड़ा था। ये? इसे सवालिया निगाहों से देखा। आपके दोस्त ने कहा है देने को। वो सर नफ़ी में हिलाता, ड्रिंक उठाकर अपनी ही सोचों में गुम लबों से लगाता, एक ही सांस में पूरी पी गया था। इसे ज़रा अजीब-सा ज़ायक़ा मिला था, मगर वो अपनी सोचों में इस कदर महव था कि ध्यान ही नहीं दे सका। निगाहों के सामने लाइबा का रोता-सिसकता चेहरा घूम रहा था। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। वो इन लोगों की गिरफ्त में मुसलसल चिल्ला रही थी। अबे इसका इलाज कर यार, ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स नागवारी से बोला था। लाइबा की मुसलसल चीखों-पुकार पर इसका सर दुखने लगा था। छोड़ो मुझे, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। वो चीख पड़ी थी, साथ दुहाइयाँ भी दे रही थी। जब इस साथ बैठे शख्स ने इसकी मखसूस रग दबाई थी और इसे वो बेहोश हो गई थी। मैडम ने कहा है इस लड़की को ज़्यादा देर नहीं रखना, बस आज ही होटल के कमरे तक पहुँचाना है। वो आगाह कर रहा था। चलो ठीक है। वो दोनों बातें करते अपने मखसूस अड्डे पर आ गए थे। यूसुफ को अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था, जब इसने वलीद को इशारे से अपनी जानिब बुलवाया। क्या हुआ ब्रो? वो सवालिया अंदाज में बोला। यार मेरा सर घूम रहा है। वो सर थाम चुका था। ओहो! तो तू फिर मेरे साथ घर चल। वो शरारत से मुस्कुराया। हाँ, मुझे घर छोड़ दे। मुझे नहीं लगता कि आज मुझसे ड्राइविंग हो सकेगी। वो अपना सर बार-बार झटक रहा था। हाँ, हाँ, चल भई। वो साथ लिए डिस्को से बाहर निकल आया था, जबकि यूसुफ के सामने बार-बार इस दिलरुबा का चेहरा घूम रहा था, जिसे कल वो अपने इंतकाम की भेंट चढ़ा चुका था। वो नीम बेहोशी में होटल के कमरे में पहुँचा दी गई थी। इसे खुद भी खबर नहीं हुई थी। वो अभी होश में आई थी, इर्द-गिर्द निगाह घुमाई तो अंधेरा था। वो बामुश्किल चकराते सर को थाम कर उठती, बेड से नीचे कदम रखती दरवाज़े की जानिब बढ़ रही थी कि जभी कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। मुझे मुझे जाने दो प्लीज़। वो खौफ़ज़दा हुई। वजूद से जान निकलती महसूस हुई थी। हे स्वीटहार्ट, सॉरी। यूसुफ जो पहले ही नशे में था कि इसे अपने सामने नज़र आती लाइबा को देख वो बुरी तरह से बहका था। इसे आज हर तरफ बस लाइबा ही नज़र आ रही थी। इस डोज़ का असर था जो इसके सर पर
चढ़ रहा था, जबकि वो झलबला उठी थी। इसके रूम में आते ही रूम बाहर से बंद कर दिया गया था। मुझे जाने दो प्लीज़, मैं किसी और के निकाह में हूँ। देखो ये बहुत बड़ा गुनाह है। वो सिसक-सिसक कर बोलती अपनी बेबसी बयान कर रही थी, जबकि यूसुफ के दिमाग पर तो बस अपना ही निकाह सवार था। बेबी, तुम मेरे निकाह में हो, माय लाइफ, माय वाइफ, सॉरी फॉर माय पास्ट मिस्टेक हनी। वो ज़बरदस्ती इसे काबू में करता अपने हिसार में ले गया था। इसकी सारी इल्तिजाएँ, रोना, बेबसी, तमाम तर मज़ाहमतें इसके हिसार में दम तोड़ गई थीं, जबकि यूसुफ पर तो बस एक खुमार सा सवार था, जो लाइबा यूसुफ को एक बार फिर बर्बाद कर चुका था। रात की स्याह तारीकी ढलकर रोशन सुबह में तब्दील हो गई थी, जबकि वो लुटी-पुटी सी हालत में बेड की पायती के करीब फर्श पर घुटनों में सर दिए बैठी, घुटी-घुटी हिचकियों और सिसकियों से रो रही थी। दिल में दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। रात के अंधेरे में बेड पर मौजूद इस शख्स ने एक निकाहशुदा लड़की की इज्जत को तार-तार कर दिया था। या अल्लाह मुझे मौत दे दे। अपना चेहरा रगड़ती वो एक झटके से उठी थी और तैश में होटल के कमरे में कोई चीज़ तलाश करने लगी थी, ताकि पहले इस शख्स का कत्ल करके अपने बेकार वजूद भी ख़त्म कर सके। मेरी ज़िंदगी तबाह करने वाली, अल्लाह तुम्हें भी यूँ ही दुनिया और आख़िरत में रुसवा करेगा। दिल से अपनी सगी बहन के लिए बददुआएँ निकालती वो टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट के साथ रखी छुरी उठाकर इस शख्स को मारने के करीब आई थी, जिसने नशे की हालत में इसकी इज़्ज़त को तार-तार करके रख दिया था। अल्लाह ने चाहा तो तुम अपनी हलाल और महरम के लिए तरस जाओगे और कुदरत तुम पर रहम नहीं करेगी। वो नीम-ईराना हालत में औंधे मुँह सो रहा था जब यूसुफ ने बामुश्किल चाकू उठाया था। न जाने ऐसा कौन-सा नशा था जो सर पर सवार था कि एक लड़की को बर्बाद कर देने के बावजूद वो बेखबर नींद सो रहा था। तो इससे कबल कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती, इसकी निगाह इस शख्स के चेहरे पर गई थी जिसने रात के अंधेरे में इसे तबाह कर दिया था। और यही वो लम्हा था जब वो ठहर गई थी। मुकाबिल का पुरसुकून चेहरा देखकर इसके हाथ लरज़ गए थे। चाकू बेजान होते हाथों से निकलकर बेड पर ही गिर गया था और वो खौफज़दा धड़कते दिल से 2 कदम पीछे हुई थी। या मेरे अल्लाह! ये कैसी आज़माइश है? पास पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर खुद को कवर करते हुए इसने बामुश्किल अपनी लड़ज़ाहट पर काबू पाया था। हाथों में कँपकँपी होने लगी थी। डगमगाते कदमों से सोफ़े पर पड़ी अपनी सियाह चादर उठाकर अपने तन पर डालती, अपना बिखरा हुलिया समेटती, इस बिगड़े अमीरज़ादे पर एक कहर भरी निगाह डालती कम होटल के कमरे से निकल आई थी। मगर दिल में 2 लोगों को तबाह करने का मुसम्मम इरादा कर लिया था। एक इसका बुज़दिल शौहर यूसुफ अस्फ़न्यार और दूसरी इसकी बहन। यूसुफ की आँख खुली तो इसने खुद को एक गैर मानूस जगह पर पाया था। इर्द-गिर्द में निगाह डाली तो निगाह बेड पर गई थी। कुछ गैर मामूली महसूस कर इसका दिमाग घूमा था। दुखते सर के साथ साइड टेबल पर निगाह दौड़ाई तो सारा सामान साथ ही रखा था। इसने तेज़ी से अपना मोबाइल उठाकर वलीद का नंबर डायल किया जो पहले ही बेल पे कॉल रिसीव कर ली। फिर दिलबर के पहलू में रात कैसी गुज़री, शरीर आवाज़ पर यूसुफ के पूरे बदन में स्पार्क सा हुआ। गुज़री शब और दबी-दबी चीखें कानों में गूंज गई। शट अप! क्या बकवास है ये? वो शिद्दत से कुर्राया था। ओ बस कर जा यार, रात गुज़र गई फिर भी ड्रामे नहीं खत्म हो रहे तेरे। इस बार वलीद ने इसे बुरी तरह लताड़ा था, जबकि यूसुफ ने गुस्से से मोबाइल फर्श पर दे मारा था। बालों को सख्ती से मुट्ठियों में जकड़ता पागल होने के दर पर था। ये क्या कर दिया मैंने? मैं कैसे किसी औरत की इज़्ज़त ख़राब कर सकता हूँ? पास रखा पानी का जग उठाकर खुद पर उंडेलता वो शदीद अज़ियत से दो-चार था। कानों में इस लड़की की चीखों-पुकार सिसकियाँ गूंज रही थीं, जो गुज़री रात में इससे अपनी इज़्ज़त की भीख माँगती, रहम माँग रही थी और इसने रहम नहीं किया था। इस तरह तो लाइबा भी इससे रहम की भीख माँग रही थी, मगर इसने रहम नहीं किया था। मैं कैसे 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता हूँ? कैसे? वो हद से ज़्यादा पागल हो रहा था। ज़ोफ़ी वो रात में गई कहाँ? असफंयार को अब रह-रह कर तैश आ रहा था क्योंकि शेख वापस पैसे माँग रहा था। वरना वो बदले में लाइबा को माँग रहा था जो 2 दिन में ना जाने कहाँ गुम हो गई थी। मुझे क्या मालूम असफ़ी, आपको तो मालूम है कितनी बदचलन बेटी है आपकी, पता नहीं कितने फँसा रखे थे। वो दुरुस्तगी से बोलीं तो वो माथा मसल कर रह गए। यार क्या मुसीबत है ये! वो शदीद परेशानी में मुब्तला थे। अब क्या करना है? इन्हें हौल उठ रहे थे। सामान पैक करो। शेख ने सिर्फ़ 5 दिन का वक़्त दिया है। हमें 5 दिन के अंदर-अंदर शहर बदलना होगा बल्कि कोशिश करो कि कुछ अरसे के लिए हम इस मुल्क से ही बाहर चले जाएँ। मुलाज़मीन को इस बात की खबर ना देना, हम कल रात में निकल जाएँगे। वो परेशानी के आलम में जल्दी से प्रोग्राम तरतीब देकर बोले थे क्योंकि यकीनन अब वो इन पर नज़र रखेगा।
मैं कहती थी ना ये लड़की ही मनहूस है। अब वो एक बार फिर से ज़हर उगलने लगी थी, जबकि वो खामोशी से सब सुन रहे थे। दिमाग बहुत सी उलझनों में उलझा हुआ था। यार यूसुफ, मेरी बात तो सुन। मुसलसल इसे मनाने में कोशिश था, जो रात के बाद इससे रूठ कर बैठ गया था। बेहतर होगा तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता। तुम जानते हो तुमने कितना बड़ा गुनाह करा दिया मुझसे। वो वहशत से चिल्लाया था। इसका ज़मीर बार-बार मलामत कर रहा था कि वो भी बदकिरदार और ज़ानी मर्दों की फ़हरिस्त में शामिल हो गया था। ओ बस कर जा, मैंने सिर्फ़ एक डोज़ दी थी, मगर तू खुद पर कंट्रोल कर सकता था। इस औरत का नशा ही है अब औरत का नशा ही ऐसा होता है। वो और चिल कर, कुछ दिन में तू भी सब भूल जाएगा। फर्स्ट टाइम था इसलिए तो। वरीद के मुँह पर पड़ने वाले मुक्के ने इसे खामोश करा दिया था। बकवास बंद करो बेहुदा इंसान, वो शिद्दत से गुर्राया था। देख अब तू ओवर रिएक्ट, निकलो मेरे घर से, और आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। वो गुस्से से बोलता इसे धक्के मारकर पैलेस से निकाल चुका था, जबकि अब वो खुद सर हाथों में थाम कर बैठा था। उफ! ये क्या हो गया मुझसे? अगर दादा अब्बू को खबर लग गई तो वो तो मुझे जान से मार देंगे। वो हद से ज़्यादा खौफ़ज़दा था, क्योंकि बेशक वो इंतकाम की आग में अंधा हो गया था, मगर वो कभी अपने बाप-दादा की तरबियत पर हुर्फ़ नहीं आने दे सकता था। मैं लाइबा को तलाक दे दूँगा। हाँ, इससे माफ़ी माँग कर इसको तलाक दे दूँगा, और वो लड़की जो पहले ही निकाहशुदा थी, उफ़! ये कितना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। वो बालों में मुट्ठियों में दबोचता बाकायदा आवाज़ में खुद को कोस रहा था, क्योंकि एक तरफ किसी मर्द के इंतकाम में वो एक औरत को अपना नाम देकर ठुकरा चुका था। दूसरी जानिब वो एक पाकबाज़ औरत की इज़्ज़त ख़राब कर चुका था। अब यूसुफ जहांगीर अपनी पकड़ से खौफ़ आ रहा था, इस ज़ात से खौफ़ आ रहा था जिसके कब्ज़े में सबकी जान है। लाइबा बेटी, वो इस वक़्त एक घर में बेबी सीटर की हैसियत से मौजूद थी। इसे इस घर में क़याम किए 1 महीना होने वाला था। यस मैम, वो दौड़कर इस खातून के पास गई, जो दिखने में तकरीबन 60 साल के लगभग थी। बेटा, तुमने बेबी को दूध दे दिया था? वो पूछ रही थी। जी मैडम, दे दिया था, उन्होंने समझकर सिलाया। वैसे तुम्हारे घर में कौन-कौन होता है? इस बार उन्होंने ज़रा इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। कोई भी नहीं है, मेरी माँ-बाप का इंतकाल हो चुका है। ओह! माफ़ करना बेटा, वैसे शाज़िल बता रहा था कि आप और वो यूनिवर्सिटी में साथ ही थे। इस बार उन्होंने ज़रा अचंभे से पूछा। जी, वो हम एक ही यूनिवर्सिटी में थे, मगर शाज़िल तो मुझसे 5 साल सीनियर है। बस वैसे ही प्रोफ़ेसर के थ्रू हमारी मुलाकात हुई थी। वो लब दाँतों तले दबा गई थी। ओह! अच्छा, अच्छा, वो समझकर सिर हिला गया। अच्छा आंटी, वो मैं हया को देख लेती हूँ, कहीं रो ना रही हो। वो 1 साल की बच्ची थी, जबकि शाज़िल की बीवी का इंतकाल एक रोड एक्सीडेंट में हो गया था। यूसुफ डार्लिंग, तुम लंदन कब वापस आओगे यार? वो नेल फाइलर से नाखून घिस रही थी। सॉरी मारूफ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मुकाबिल को ज़बरदस्त किस्म का झटका लगा था। व्हाट? तुम होश में तो हो? क्या बोल रहे हो? वो गड़बड़ाई। सॉरी डियर, मगर मैं मज़ीद इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। वो बोलकर खट से मोबाइल बंद कर गया था। दूसरी जानिब वो हेलो हेलो ही करती रह गई थी। सर, क्या हो गया है? आप इतना परेशान क्यों हैं? वो अपना सर थामे बैठा था। बाबा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो हद से ज़्यादा परेशान था। कैसी गलती बेटा? वो इनके घर के बहुत पुराने मुलाजिम थे। मेरी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो पशेमान था। या मेरे अल्लाह! ऐसा क्या कर दिया बेटा? वो मैंने असफंयार की बेटी से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया था। फिर मैंने इससे निकाहनामा छीन कर घर वापस छोड़ दिया। मगर मैं 1 माह से इसे ढूँढ रहा हूँ ताकि तलाक दे सकूँ। मगर मुलाज़मीन कह रहे हैं कि इसके माँ-बाप ने इसकी ज़बरदस्ती कहीं शादी कर दी है और वो मुल्क छोड़ गए हैं। वो होटल के कमरे वाली बात खोल कर गया था। असल परेशानी तो इसे इस लड़की की थी, जो किसी की इज़्ज़त थी। या मेरे अल्लाह! ये क्या गुनाह कर दिया आपने बाबा? बड़े साहब को अगर खबर हो गई तो वो नहीं प्लीज़, ऐसा कुछ ना कहिएगा जो मैं सुन ना सकूँ। इसने फ़ौरन इन्हें रोका था। बेटा, औरत ज़ात का निकाह पर निकाह नहीं होता, वो समझा रहा था। ये सब मेरी जल्दबाज़ी का इंजाम है। मैंने किसी निकाहशुदा लड़की की इज़्ज़त ख़राब की थी। अल्लाह ने मुझे सज़ा दी। पता नहीं मेरे निकाह में मौजूद लड़की। वो धीमी सी आवाज़ में खुद साख्ता बड़बड़ाया था। क्या कह रहे हैं बाबा? वो नासमझी से बोले। कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप प्लीज़ दादा अब्बू को कुछ ना बताइएगा। वो सर हिलाकर खामोश रह गया।
جبکہ اندر ہی اندر اسے ایک ہی غم کھائے جا رہا تھا۔ یار کہاں غائب رہتے ہو تم؟ شازل اور یوسف دونوں بزنس پارٹنر تھے۔ دونوں نے پارٹنرشپ پر نیا بزنس سٹارٹ کیا تھا۔ میں نے کہاں جانا ہے یار، یہیں ہوتا ہوں۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ او ریئلی؟ مجھے لگا کوئی لڑکی کا چکر ہے بھائی، کیونکہ گزشتہ ایک ماہ میں جتنی بار بھی تمہارے آفس آیا ہوں، صاحب سیٹ پر ہی نہیں ہوتے۔ وہ زمائنی لہجے میں بولا۔ نہیں یار ایسا نہیں ہے، تم بتاؤ گڑیا کیسی ہے؟ وہ حیا کا پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بلکہ اب تو وہ بہت زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ اسے بہت جلد اپنی نئی مومی جو ملنے والی ہے۔ یوسف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ریئلی؟ تو دوسری شادی کرنے والا ہے؟ بھابھی کو اتنی جلدی بھول گیا؟ وہ حورنک ہوا۔ نہیں یار، حالے کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، مگر حیا کو دیکھتے ہوئے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ وہ لڑکی یونیورسٹی میں ہی پڑھتی رہی ہے، مجھ سے تو کافی جونیئر ہے، بٹ بدقسمتی سے اس کا کوئی ہے نہیں۔ پہلے ہاسٹل رہتی تھی، ابھی ایک ماہ سے حیا کی بیبی سیٹر کی حیثیت سے گھر میں موجود ہے، اور حیا کا بہت خیال بھی رکھتی ہے۔ یوسف سمجھ کر سر ہلا گیا۔ چل اچھی بات ہے، اس طرح تجھے بھی اپنی لائف پارٹنر مل جائے گی۔ وہ سر ہلا گیا۔ تو بتا، تیری وہ 3 سال والی محبوبہ سے شادی کا کب ارادہ ہے؟ اب وہ یوسف سے استفسار کر رہا تھا۔ اس سے تو میرا بریک اپ ہو گیا ہے، اس نے گویا بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ آر یو سیریس؟ وہ شاکڈ ہوا۔ ہاں یار، بس مجھے وہ اپنے ٹائپ کی نہیں لگتی۔ ویسے بھی وہ پاکستان نہیں آنا چاہتی، اور اب میرا ارادہ یہی سیٹل ہونے کا ہے۔ وہ سر ہلا گیا۔ چل بیسٹ آف لک، تو کوئی اور لڑکی پسند آئی تجھے؟ اب وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں، سیل لگی ہوئی ہے، جو ایک گئی اور ایک آئی؟ وہ خفا ہوا تھا، تو وہ کہکا لگا گیا، جبکہ اب دونوں کام سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ واٹ دا ہیل از دس؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اسفند صاحب اس وقت دبئی میں موجود تھے، جب ان کی لاڈلی بھی لندن سے انہی کے پاس آ گئی تھی۔ یوسف نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے بابا۔ آپ کو اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ ضد ہوئی۔ وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یوسف نے اس شادی سے انکار کیوں کیا ہے؟ میں نہیں جانتی۔ آپ پاکستان میں پتہ نہیں کیا کر کے آ رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ضد ہوئی۔ تمہاری نانی نے اس کے خاندان والوں سے بات نہیں کی؟ وہ سالوں کی رشتہ داری یوں لمحوں میں کیسے توڑ سکتے ہیں؟ وہ غصہ ہوئے۔ یہ سب آپ کی اس بیٹی کی منحوسیت کی وجہ سے ہوا ہے، زوفی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ چپ کر جاؤ تم دونوں ماں بیٹی، کچھ سوچنے دو مجھے۔ وہ غصے سے گھرائے تھے، جبکہ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش ہو گئی تھی۔ او میری گڑیا، کتنی پیاری لگ رہی ہے، بالکل ڈال جیسی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ حیا کا کمرہ تھا، جو شازل کے کمرے کے ساتھ ہی تھا، جبکہ وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی پری ہو۔ ہے نا؟ وہ اچانک آواز پر پوری اچھل گئی تھی۔ آپ کب آئے؟ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ جب آپ میری ڈال کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں شازل، یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ میری بیٹی ہے ہی پیاری، بالکل اپنی ماما کی طرح۔ وہ محبت سے بولتا اس کا ماتھا چوم گیا، جبکہ اس نے یہ منظر بہت محبت سے دیکھا تھا۔ میں کھانا لگوا دیتی ہوں۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ ارے ابھی نہیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، یہیں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ گلا کھنگار کر گویا ہوا۔ حیا اس کی گود میں تھی۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں۔ وہ پوری توجہ سے ہمدم گوشہ ہوئی۔ دراصل وہ ذرا ہچکچاہٹ کا شکار ہوا۔ جی میں سن رہی ہوں۔ وہ سپاٹ تاثرات سے اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ رہی تھی۔ دراصل کیا آپ میری بیٹی کی ماما بننا پسند کریں گی؟ اس قدر عجیب انداز میں پرپوز کر رہا تھا کہ ایک لمحے کو اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ سوری، اسے شاید سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ لائبہ، کیا آپ تاحیات کے لیے میرا ساتھ قبول کریں گی؟ اس بار لائبہ کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ کھل گئی تھی، جبکہ وہ مقابل بیٹھے شازل کو تھوڑا عجیب محسوس ہوا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میری بات کا جواب تو دے دیں۔ وہ اس کی حرکت پر حنک ہوا۔ میں نے آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کر دیا تھا، مگر مجھے ابھی تک بینک سے ای میل نہیں آئی، شاید آپ کی طرف سے ہی سیلری لیٹ ہو گئی ہے۔
وولٹا ہی جواب دیتی اسے حیران و پریشان چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اپنی بیٹی کے رونے کی آواز پر چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ یہ ہم کیا سن رہے ہیں برخوردار؟ وہ ذرا رعب لہجے میں سوالیہ گویا ہوئے تھے۔ کیا سن لیا میرے پیارے دادا جان نے؟ وہ صوفے کی پوچھ سے سر گرائے بڑے مطمئن انداز میں بات کر رہا تھا۔ یہی کہ آپ نے شادی سے انکار کر دیا ہے؟ وہ ذرا رعب سے سوالیہ بولے۔ جی کیونکہ آپ کی کبھی نہ ہونے والی بہو پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی، اور میں اپنا بزنس پاکستان میں سیٹ کر چکا ہوں، تو ایسے میں آپ ہی بتائیں کہ ہم کیسے ایڈجسٹ کرتے؟ دوسرے جانب سے گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ تو اب وہ سوالیہ گویا ہوئے، اب یہ کہ میں نے پاکستان میں ہی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ اس بار چونکنے کی باری رحمان صاحب کی تھی۔ یوسف، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ شاکڈ ہوئے۔ میری مجبوری تھی بابا جان۔ وہ لب دانتوں تلے دبا گیا۔ ایسی کون سی مجبوری تھی آپ کی؟ وہ سخت لہجے میں گویا ہوئے۔ میں محبت کرتا ہوں اس لڑکی سے، اسے بہانہ بنایا۔ 4 دن ہوئے ہیں آپ کو پاکستان گئے اور آپ کو محبت بھی ہو گئی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ نام بتائیں، بلکہ بات کرائیں ہماری۔ کس گھر خاندان سے ہے کچھ پتا تو چلے۔ اور وہ سختی پر اتر آئے تھے۔ ابھی تو میں گھر سے باہر ہوں بابا جان، گھر پہنچ کر کروا دوں گا۔ اسے ٹالنا چاہا۔ یعنی ہماری اجازت کو تو چھوڑے، ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا، اور نکاح رخصتی کے تمام معاملات طے کر لیے آپ نے۔ وہ خفا ہوئے۔ میری مجبوری تھی بابا، وہ اکیلی ہوتی ہے بس اسی لیے۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا بکواس کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں پاکستان آ جاتا ہوں، تمہارا ولیمہ ارینج کر لیتے ہیں، پھر تمہارے چچا چچی کو بھی بلوا لیں گے۔ اس بار یوسف گڑبڑایا تھا۔ پاکستان میں میرا مطلب ہے ابھی کیا ضرورت ہے؟ اسے گردن سہلائی۔ تو کیا باپ بننے کے بعد ولیمہ کرنے کا ارادہ ہے؟ یوسف بری طرح سٹپٹایا۔ بس فیصلہ ہو گیا، ہم اگلے ماہ تک پاکستان آنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ وہ 2 4 اور باتیں کر کے رابطہ منقطع کر گئے تھے۔ جاری ہے۔